Hello everyone. Today we will study about the instrumentation of UV visible spectroscopy. So in this these are the components which are used. First one is the radiation source. The most common radiation source which is used in the UV is tungsten and hydrogen discharge lamp. Second is the wavelength selector. It is of three types. First is the means it includes three. First one is the filter. It is of two types, that is the absorption filter and the interference filter. Second is a monochromator. It gives the desired wavelength in the UV or visible range region. And monochromator are of two types. One is the prism and grating. Second is next is the slits. There are two main components of a slit. One is the entrance and other one is the exit slit. Cells, third one is the cells or cuvettes, which is used for holding the sample solution or reference standard to or pure solvent, we can say. Fourth one is the detector, and fifth one is the recording system. Sixth one is the power supply. Recording system, in this the recording is done by the recorder pen. Detector, in this three detector are used. One is the photomultiplier tube, photo tube and photocell. This is all about the introduction. We will study this in detail. Radiation source. So in all the sources, excitation is done by passing electrons through the gas, and which causes the collision between, or we can say there is a collide or collision of gas and the electrons, which result in the electronic, vibrational and rotational excitation in the gas molecules. When the pressure of the gas is low, then only line spectra is emitted. और जब प्रेशर हाई होता है, गैस प्रेशर, तो फिर वहाँ पे हमें बैंड स्पेक्ट्रा एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा वी कैन ऑब्टेन. रिक्वायरमेंट फॉर द रेडिएशन सोर्स मीन्स ये स्टेबल होना चाहिए एंड इट मस्ट सप्लाई कंटिन्यूस रेडिएशन ओवर इंटायर वेवलेंथ रीजन. थर्ड, सफिशेंट इंटेंसिटी फॉर ट्रांसमिटेड एनर्जी टू बी डिटेक्टेड. ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, तीन रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट इज अबाउट दीज आर द रेडिएशन सोर्स. सो द फर्स्ट वन इज द टंगस्टन लैम्प. सो इसका जो फंक्शनिंग होता है वो सिमिलर होता है इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब से, और इसमें जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो हीटेड किया जाता है इलेक्ट्रिकली टू वाइट हीट. और इसके इट हैज़ द टू शॉर्ट कमिंग्स. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट शॉर्टर वेवलेंथ इज स्मॉल. मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ पे जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वो स्मॉल होती है, और इसकी इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट रखनी है तो हमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है लैम्प पे, उससे हमें कंट्रोल करना होता है. इट मस्ट बी कंट्रोल केयरफुली. और जो टंगस्टन लैम्प होता है वो एक स्टेबल होता है, रोबस्ट होता है एंड ईजी टू यूज़ होता है. Second one is the hydrogen discharge lamp. So hydrogen discharge lamp, in this the hydrogen gas is stored under relatively high pressure, और इसकी हाई प्रेशर की वजह से हमें इसमें कंटिन्यूम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता है रेदर देन सिंपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. And when the electric discharge is passed through lamps, excited hydrogen molecules will be produced, which will emit UV radiations. High pressure bring about many collision between hydrogen molecule, result in pressure broadening. It covers the range from 3500 to 1200 Armstrong. ये भी क्या होता है, स्टेबल होता है, रोबस्ट होता है, बट ये वाइडली यूज होता है. टंगस्टन लैम्प में भी यही पढ़ा था हमने, सेम इसमें भी वही है. एंड अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं ना, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की जगह ड्यूट्रियम, उसे D2 कहा जाता है, वो यूज़ करेंगे तो emission intensity is increased by as much as a factor of 3 at the short wavelength end of the UV range. थर्ड वन इज़ द ड्यूट्रियम लैम्प. ये जो होता है एक्सपेंसिव होता है हाइड्रोजन से एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन. इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हाई इंटेंसिटी रिक्वायर हो.
अगर हम ड्यूट्रियम की जगह हाइड्रोजन प्लेस करेंगे तो the intensity of the radiation is 3 to 5 times the intensity of hydrogen lamp. Then the next one is the fourth, we can say xenon discharge lamp. इसमें क्या होता है, जिनॉन गैस यूज़ की जाती है जिसे हम स्टोर करते हैं प्रेशर पे, दैट इज़ 10 to 30 एटमोसफियर. इसमें 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसको हम सेपरेट करते हैं 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. दीज आर सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर. दैन इंटेंसिटी जो होती है इसमें वो ग्रेटर होती है एज दैन दैट ऑफ द हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प. मर्क्यूरी आर्क लैम्प, इसमें क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, इसकी वजह से हम इसको वाइडली यूज़ नहीं करते. और लो प्रेशर पे मर्क्यूरी आर्क को हम ये यूज़फुल होता है कैलिब्रेशन के लिए. मर्क्यूरी वेपर जो होता है उसका जो प्रेशर लो होने की वजह से वो शार्प बैंड देता है, मीन्स इट विल प्रोड्यूसेस दी शार्प बैंड. एंड एक्साइटेशन ऑफ मर्क्यूरी एटम इज़ डन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. नेक्स्ट वी विल स्टडी दैट इज़ वेवलेंथ सिलेक्टर. इसमें हमने 3 देखे थे. पहला देखेंगे फ़िल्टर. फ़िल्टर जो होता है वो प्रोवाइड करता है हाई रेडिएशन. इसकी इफ़िशियंसी जो है वो 50 to 80% है. एब्जॉर्प्शन फिल्टर्स, these filters are derive their effects from the bulk interaction of radiation within the material. सो इसमें हम बहुत वेराइटी के होस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, लाइक ग्लास यूज़ कर सकते हैं, जिलेटिन, लिक्विड, प्लास्टिक. ग्लास फिल्टर जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ऑटोमेटेड केमिकल एनालिसिस इक्विपमेंट और कलरीमेट्री में. शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है वो स्कैटर्ड एंड एब्जॉर्ब होती है, बट लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है अनअफेक्टेड होती है. कट ऑन एंड कट ऑफ फिल्टर्स जो होता है इसे हम यूज़ करते हैं ब्लॉकिंग फिल्टर्स की तरह. ये जो है सप्रेस करता है अनवांटेड स्पेक्ट्रल ऑर्डर्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस फिल्टर एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. प्लास्टिक फिल्टर्स होता है, देयर आर वाइड वेराइटी ऑफ प्लास्टिक फिल्टर्स. इट इंक्लूड्स बोथ शार्प कट एंड इंटरमीडिएट बैंड विड्थ. Second is the interference filters. It is based on the phenomena of optical interference. और इसमें जो है सिंपल 2 इंटरफेरेंस फिल्टर जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं डाई इलेक्ट्रिकल स्पेसर film which is sandwiched between the 2 parallel partially reflecting metal film, usually of silver. नेक्स्ट इज़ दी मोनोक्रोमेटेड. इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैंने बताया. मोनोक्रोमेटेड इट इज़ यूज टू डिस्पर्स दी रेडिएशन. इट इज़ यूज मोनोक्रोमेटर, इट गिव्स द डिज़ायर वेवलेंथ इन द यूवी और विजिबल रीजन. इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो इंट्रेंस स्लिट होता है, डिस्पर्सिंग एलिमेंट होता है एंड द थर्ड वन इज़ द एग्जिस्ट स्लिट होता है. तो इसमें जो इंट्रेंस स्लिट होता है वो इट शार्पली डिफाइंस इनकमिंग बीम ऑफ हेट्रोक्रोमेटिक रेडिएशन. डिस्पर्सिंग एलिमेंट क्या का काम होता है कि वो डिस्पर्स करे इन रेडिएशन को सारे कंपोनेंट में. एग्जिस्ट स्लिट, इट अलोज नॉमिनल वेवलेंथ टुगेदर विद ए बैंड ऑफ वेवलेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ इट. इसमें जो ग्लास यूज़ करते हैं, ग्लास इट इज़ हैविंग दी हाईएस्ट रिजॉल्विंग पावर बट नॉट ट्रांसपेरेंट if the wavelength is 2000, between the range of 2000 to 3000 Armstrong. Quartz and fused silica prisms are transparent and are widely used. Fused silica prisms are used only when very intense radiation is required. So these are some of the characteristics of monochromator. First one is it allows the largest entrance slit width, highest dispersion, largest optic is affordable, longest focal length. Entrance optics will optimize induce highest groove density, will accommodate spectral range. Optic and coating accommodate spectral range.
Then the types of the monochromator. One is the prism and second one is the grating. In the prism it is of single pass prism monochromator and the double pass monochromator. So this is the diagram. यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन सोर्स होता है. फ्रॉम रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल एंड द entrance slit, it will going to be strike to this B, that is the strikes of axis parabolic litro mirror, which renders these radiation parallelly and passes further to the prism, and from the prism this dispersed radiation after reflecting from plane mirror, it returns back to the return backs through the prism second time, and it will focus on the exist slit of monochromator, and finally it will passes into the detector section. नेक्स्ट इज़ दी डबल पास मोनोक्रोमेटर. ये इसकी डायग्राम है. इसमें क्या होता है, 4 रेडिएशन सोर्स हम लोग पासिस करेंगे मतलब प्रिज्म पे, और ये जो होता है ज़्यादा रिजोल्यूशन देते हैं मोनोक्रोमेटर लाइट से, इसलिए इसे हम डबल पास मोनोक्रोमेटर कहते हैं. ये इसकी डायग्राम है. हाँ, इसमें एरो नहीं बनाए. इंट्रेस्ट स्लिट से जाएगा और एग्जिट स्लिट से वो आउटसाइड होता है ज़्यादा है, दैट इज से. एंड दिस इज ए ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर. ये उसकी डायग्राम है. इसमें क्या होता है, when parallel radiation illuminates a reflecting diffraction grating, the multiple refraction from the mirror grooves will overlap and interfere with each other. If reflected waves are in phase, then it is said to be as constructive. अगर reflective waves are out of the phase, then it will be destructive. दैन इनके बीच में जो अगर रिलेशन डिटरमाइंस वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, तो इसमें जो फॉर्मूला है वो एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा. यहाँ पे जो n है वो ऑर्डर है, d जो है सेपरेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड थीटा जो है वो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन. सो दी एडवांटेजेस वी कैन से, ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर की कुछ एडवांटेजेस होते हैं ओवर दी प्रिज्म मोनोक्रोमेटर. फर्स्ट वन इज दी बेटर रिजोल्यूशन एंड एनर्जी ट्रांसफर. कांस्टेंट बैंडविड्थ ड्यू टू डिस्पर्जन require less complicated wavelength. It is used over considerable wavelength range. The stray light limited to imperfection. Yeah, in this the grating monochromator are made with material and they are not attacked by the atmosphere moisture. स्लिट, यहाँ पे 2 टाइप्स के स्लिट हमने देखे थे. एक इंट्रेंस होता है, एक एग्जिस्ट होता है. जो इंट्रेंस होता है, इट हैज़ द नैरो सोर्स ऑफ लाइट, सो नो ओवरलैपिंग ऑफ मोनोक्रोमेटर इमेजेस. एग्जिस्ट स्लिट, it selects a narrow band of dispersed spectrum for absorption by detector. Next is the sample cell or the cuvettes. It is used for holding the sample solution, or we can say pure solvent or the reference standard solution, reference solution और सॉल्वेंट. और इसमें जो डिस्टेंस होता है वो सेल पाथ लेंथ का जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है यूवी या फिर उसके यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में. प्लास्टिक सेल जो है वो यूज़ किया जाता है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप फोटोमीटर में. सिलिकेट ग्लास जो होता है उनकी रेंज जो होती है इतनी रेंज में उसे यूज़ करते हैं सिलिकेट ग्लास को, दैट इज़ 375 to 2000 नैनोमीटर. और इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है. क्वार्ट्ज और fused silica, they are used in the UV and visible. सेल जो होते हैं हम मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सेल्स यूज़ करते हैं, लाइक वी कैन से सिलेंड्रिकल, सेमी माइक्रोफ्लो, सैम्पलिंग, then demountable, tall micro, minimum height, micro stoppered, normal.
नेक्स्ट इसमें 3 टाइप्स के डिटेक्टर होते हैं. फर्स्ट वन इज़ दी डिटेक्टर्स, और इसको हम फोटोमेट्रिक भी कहते हैं. डिटेक्टर जो यूज़ होते हैं 3 टाइप के. तो इसमें पहला जो है फोटो ट्यूब्स होता है. इनके डिफरेंट नेम्स है. फोटो ट्यूब्स इज ऑल्सो सेड टू बी एज दी फोटो इम्यूसिव सेल, देन फोटो सेल्स. एंड हाई सेंसिटिव कैथोड, इसमें क्या होता है, हाई सेंसिटिव कैथोड जो होता है इज इन द फॉर्म ऑफ द हाफ सिलेंड्रिकल cylinder of metal which is contained in an evacuated tube. इसमें जो होता है एनोड जो होता है वो प्रेजेंट होता है ट्यूब के अंदर. Inside the surface of phototubes it is coated with light sensitive layer, uh, and in this when the light is passed on to the photocell surface of the photocells it will emit the electrons. The flow of the electrons towards anode will produce a current proportional to the intensity of radiation. It is more sensitive than photovoltaic cell because of the high degree amplification is used. If quartz or fused silica windows are used, the range of photocell will increase. Second which is used is the photo multiplier tube. ये मोस्ट सेंसिटिव होता है. तीनों डिटेक्टर में ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है. इट इज़ ए सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, एक्सपेंसिव होता है. ये डिटेक्ट करता है वेरी वीक सिग्नल्स को. प्रिंसिपल किसके बेसिस पे ये प्रिंसिपल है, मीन्स प्रिंसिपल क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट कंटेन्स ए फोटो कैथोड एंड 9 to 16 इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम डायनोड्स कहते हैं. डायनोड्स, और ये एनोड होता है. एनोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है. इन दी इट कंसिस्ट ऑफ ए इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर ये होता है फोटो कैथोड एंड एनोड. Each dynode is maintained at 75 to 100 volt. Response time जो होता है 10⁻⁻s second, -9 second. For every quantum of light, approximately 10⁶ electrons are produced. When radiation falls on the metal surface of photocathode, it will emit the electrons. These electrons are further attracted towards the dynode, which is having the dynode at positive voltage. When these electrons will start the first dynode, there will be more electrons are emitted from the first dynode, which is attracted by the second dynode, and where similar type of electron emission take place. So in this process is repeated for all the dynode of the photomultiplier tube until a shower of electron reaches the collector. The number of electron reaching collector is a measure of intensity of light falling on detector. Dynodes operated at an optimum voltage that gives the steady state, and it is having the transient time that is 10 to 100 u second है. थर्ड वन इज़ दी फोटोवोल्टिक सेल. इसे हम बैरियर सेल भी कहते हैं, बैरियर लेयर सेल, या फिर फोट्रॉनिक सेल भी कहा जाता है. इसमें एक सेमीकंडक्टर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ ए सेमीकंडक्टर सच एज ए सिलीनियम विच इज़ डिपोजिटेड ऑन ए स्ट्रॉन्ग मेटल बेस. जैसे कि स्ट्रॉन्ग मेटल बेस यहाँ पे आयरन है जो कि एक्ट करता है इलेक्ट्रोड की तरह. और जो सिलीनियम द सरफेस ऑफ द सिलीनियम इज़ कवर्ड बाय ए वेरी थिन लेयर ऑफ द सिल्वर और गोल्ड विच एक्ट एज ए सेकेंड कलेक्टर इलेक्ट्रॉन. इट नॉट रिक्वायर इसमें जो होता है पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होता है या बैटरी की ज़रूरत नहीं होती. सिंपल होता है डिज़ाइन करने में, और जो सेंसिटिविटी होती है वो सिर्फ मॉडरेट होती है जिसे हम फोटोमीटर में यूज़ करते हैं. when the light radiation is fall on the selenium surface, it will generate the electrons are generated at the selenium silver interface. बैरियर जो होता है वो एग्जिस्ट हो जाता है, बैरियर बन जाता है किसके बीच में, सिलीनियम और आयरन के बीच में. इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रिवेंट होते हैं फ्रॉम फ्लोइंग. सो इट विल प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द आयरन.
इलेक्ट्रॉन जो है accumulated on the silver surface which creates an electric between voltage difference between silver surface and base of the cell. If external circuit has low resistance, a photocurrent will flow directly proportional to the intensity of the incident radiation beam. इट इज़ इसका यूज़ जो होता है लिमिटेड होता है विजिबल रेंज के लिए, और वेवलेंथ रिस्पॉन्स जो होता है इट इज़ समवॉट क्लोजर टू ह्यूमन आई, दैट इज़ 450 to 650 नैनोमीटर. फोर्थ इसमें एक और एक दिया है, लेकिन कुछ बुक्स में नहीं दिया कि बहुत मीन्स चटवाल में बताया कि 3 ही डिटेक्टर्स होते हैं, तो कुछ में बताया कि 4 होते हैं, बट ये कॉमनली यूज़ नहीं होता है इतना. सो इसमें क्या है, हाँ, सिलिकॉन फोटो डायोड एरे डिटेक्टर होता है. इसका प्रिंसिपल या फिर जो मेन प्रिंसिपल है इसमें, अपॉन एक्सपोजर टू लाइट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटेक्टर विल चेंज. ओके, ये साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द डिस्पर्स्ड रेडिएशन. ये लो कॉस्ट होता है, लो सेंसिटिविटी है, और इसमें कोई भी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती. और जो रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्ड की जाती है रिकॉर्डर पेन से. जो पावर सप्लाई होते हैं उसके 3 फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट वन इज़, इसमें कुछ फंक्शन होते हैं पावर सप्लाई के. इट विल डिक्रीज द लाइन वोल्टेज टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेटिंग लेवल. Second, it will convert AC to DC with rectifiers. So this is all about the instrumentation of the UV. You can study the diagrams which I didn't mention in this about the detectors. So you can study that. Thank you.